Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. की है 6 महीने लगे. ये है चोरी की. 1,02,50 वोट 5 तरीके से होती है. डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6. डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है. গত 10 থেকে 15 বছর ধরে ভারতের নির্বাচনে ভোট চুরি হচ্ছে বলে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে লোকসভা ভোটে ভোট চুরি হয়েছে বলে দাবি করেছেন কংগ্রেস সাংসদ। প্রশ্ন তুলেছেন নির্বাচন কমিশনের দিকে। তথ্য ও পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন রাহুল গান্ধী। একদিন তো বিরোধীরা ক্ষমতায় আসবে, সেদিন আপনাদের ছাড়ব না, এই মন্তব্যের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে কড়া বার্তা কংগ্রেস সাংসদের। দেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে কারচুপির পরিসংখ্যান তুলে ধরে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। গত 24 জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই তথ্য তুলে ধরবেন বলে আগাম জানিয়েছিলেন। আর এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধী জানান, গত 10 থেকে 15 বছর ধরে নির্বাচনে ভোট চুরি হয়ে আসছে, যার সুবিধা পেয়েছে বিজেপি। সাম্প্রতিক সময়ে বারবার নির্বাচন কমিশনের দিকে অভিযোগের আঙুল তুললেও এর আগে এত স্পষ্ট ভাষায় রাহুল গান্ধী কমিশনকে এভাবে আক্রমণের রাস্তায় হাঁটেননি। গত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ গতকাল নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে তথ্য এবং পরিসংখ্যান সহ ভোট চুরির একাধিক উদাহরণ তুলে ধরেন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা এবং মধ্যপ্রদেশে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভোটে যে ফলাফল এসেছে তা ইন্ডিয়া জোটের আশঙ্কাকেই সত্যি প্রমাণ করেছে। তিনি জানান, নির্বাচন কমিশনের কাছে বারবার চাওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে ইলেকট্রিক ডেটা সরবরাহ করছে না, যাতে করে বিস্তারিত বিশ্লেষণ সম্ভব না হয়, ফলে স্ক্যান করলেও ডেটা বের করা যায় না। রাহুল গান্ধী আরও অভিযোগ করেছেন যে মহারাষ্ট্রে 1 কোটিরও বেশি নতুন ভোটার হঠাৎ করে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনের মাঝখানে। আর এই ইস্যুতে তারা নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হলেও কোনো উত্তর মেলেনি বলে জানান তিনি। রাহুল গান্ধী প্রশ্ন তুলেছেন, সঠিক ভোটাররা কি ভোট দিতে পারছেন? ভোটার তালিকায় তাহলে ভুয়ো ভোটারের নাম জোড়া হয়েছে। তার অভিযোগ, মহারাষ্ট্রের নির্বাচনে ভোট চুরি হয়েছে, তার জন্য নির্বাচনে হেরেছে কংগ্রেস। 40 লক্ষ রহস্যময় ভোটারের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। 5 বছরে মহারাষ্ট্রে যে ভোটারের সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে, 5 মাসের মধ্যে হঠাৎ তার থেকে বেশি ভোটার কোথা থেকে এলো? প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল গান্ধী। ভোটার তালিকা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের জবাব দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। রাহুল গান্ধীর দাবি, নির্বাচন কমিশনের জানানো উচিত ভোটার তালিকা ঠিক ছিল নাকি সেখানে কোনো ত্রুটি ছিল। রাহুল গান্ধী আরও অভিযোগ যে দেশে ভুয়ো ভোট হচ্ছে, আর এই ভোট চুরি ধরতে অনেক সময় লেগেছে তাদের। কংগ্রেস নিজের মতো করে ভোটার তালিকা নিয়ে তদন্ত করেছে 5টি স্তরে। 6 মাস ধরে সেই তদন্ত চালিয়েছে তারা। বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা কেন্দ্রের প্রসঙ্গ তুলে লোকসভার বিরোধী দলনেতা দাবি করেন যে এই লোকসভা কেন্দ্রের মহাদেবপুরা বিধানসভা কেন্দ্রে 6.5 লক্ষ ভোটের মধ্যে 1 লক্ষেরও বেশি ভোট চুরি হয়েছে। দলের অন্তর্তদন্তে এটা ধরা পড়েছে। 1 লক্ষেরও বেশি ভোটার ভুয়ো, যাদের ঠিকানায় ত্রুটি ধরা পড়েছে। ভোটার তালিকায় যে বড় রকমের কারচুপি হয়েছে সেটা জোর গলায় দাবি করেছেন রাহুল গান্ধী। এদিন রাহুল গান্ধী বলেন, ভোটার তালিকা এবং সিসিটিভি ফুটেজ এখন এই অপরাধের প্রমাণ, আর নির্বাচন কমিশন সেই প্রমাণ ধ্বংসের চেষ্টা করছে। এটা ভারতের সংবিধান এবং জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে অপরাধ। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ। তিনি জানান, একদিন তো বিরোধীরা ক্ষমতায় আসবে, আর সেদিন কাউকে ছাড়া হবে না। কারণ যারা দেশের একটি প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করছেন, যেসব নির্বাচনী আধিকারিক এই কাজের সাথে যুক্ত আছেন, তা সে যতই শীর্ষ পদে থাকুন না কেন, তাদেরকে ছাড় দেওয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন রাহুল গান্ধী। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है।
फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है, और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं, या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। यह देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। यह देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए गुरकीरत कौर डांग, सॉरी गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए। ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है, और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं। 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। दिखाइए हाउस नंबर 0, देखिए मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा, जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं है। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। नेक्स्ट, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा एक बेडरूम का घर है। जूम इन कीजिए। ये सब लोग, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ।
यह बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके। ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट, हां, 4132। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है, दिखाओ जरा। 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं। पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए, फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए, सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे, इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं, या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। और दिखाइए, तो इस प्रकार से बेंगलोर का चुनाव चोरी किया गया। 2-3 और चीजें। हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है, या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट्स में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है, और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है।